علی محمد خان صاحب وقت دینے کے لیے. سر سب سے پہلے اگر یہ جو حدیبیہ پیپر ملز کے جو فیصلے کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے حکومت کی جانب سے، اگر ٹائم لائن دیکھیں تو شہباز شریف صاحب کی ضمانت پر رہائی، پھر ان کی لندن ممکنہ روانگی کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے، اور اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ اسی فیصلے کے تناظر میں حکومت نے یہ رد عمل دیا ہے، کیا یہ درست ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد. بہت شکریہ جی. شہباز صاحب 2 دن پہلے جا رہے تھے اور ظاہر ہے اس میں جو معاملہ ہوا سب نے اس کو دیکھا کہ اس کی جو ڈائریکشن تھی وہ FIA کو نہیں ملی تھی اور وہ جو ہے وہ نہیں جا سکے. بہرحال عدالت کا جو فیصلہ ہوگا، جو حکم ہوگا، جب یہ عدالت آرڈر کرے گی تو حکومت اس پہ عمل کرے گی، لیکن بہرحال کام جو بھی ہوگا آئین کے مطابق ہوگا. یہ جو حدیبیہ والا معاملہ ہے، میرا نہیں خیال کہ اس کا مجھے کوئی ڈائریکٹ لنک لگتا ہے. یہ ایک ایشو رہا پرانا جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ہماری حکومت میں تو بنا ہی نہیں. یہ تو رحمان مالک صاحب کو جب میرے خیال میں زرداری صاحب کے زمانے میں ٹاسک دیا گیا تھا انویسٹیگیشنز کا اور کرپشن کے خلاف، تو اس میں میاں صاحب کے خلاف یہ کیسز سارے بنے، اور یہ تو پیپلز پارٹی کے دور کے بنے ہوئے کیسز تھے جو پھر 2014 میں اگر آپ کو یاد ہوگا تو اس زمانے میں پھر یہ کیس آہستہ آہستہ کلوزنگ کی طرف گیا، اور مرکزی حکومت جس کا کام ہوتا ہے پروسیکیوشن، چونکہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی اپنی حکومت تھی تو اس میں اس طرح سے ظاہر ہے وہ تندہی انہوں نے نہیں دکھائی جو سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ ان کی اپنی حکومت تھی اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی اپنی لیڈرشپ کے خلاف کیس اس طرح سے پروسیکیوٹ ہو. تو اب اس میں فواد صاحب نے، ہمارے انفارمیشن منسٹر صاحب نے اس پہ حکومتی موقف ایک طرح سے دیا بھی ہے. میں ایز اے وکیل یہ کہوں گا کہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ اگر کوئی کرمنل کیس ناک آؤٹ ہوتا ہے تو اس کی تو اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے، لیکن اصل میں تو میرٹس پہ ہی ڈیسائیڈ ہونا ہوتا ہے. اگر کسی شخص پہ کوئی کیس ہے کرپشن کا، کوئی کرمنل کیس ہے جس میں سزا جیل ہو سکتی ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ سول کیس تو نہیں ہے. اس میں پھر یا آپ بری ہوتے ہیں یا آپ کو سزا ہوتی ہے. اب سپریم کورٹ آف پاکستان اور اعلیٰ عدلیہ جو ہے ہماری معزز عدالتوں نے اس پہ اپنی جو ہے وہ رائے وہ دی تھی، لیکن بہرحال اگر اس میں کرمنل کیس میں کوئی چیز ایسی نکلتی ہے جو کہ نئی انویسٹیگیشن ہو یا نئی معلومات ہوں تو ہمیشہ اس کی طرف جا سکتا ہے. علی محمد خان صاحب، اس کیس کی حیت اور نیچر تو جب آپ کی حکومت آئی 2018 میں تب بھی یہی تھی، تو پھر لگ بھگ 3 سال گزرنے کے بعد اب کیوں اس کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے؟ یہی ایک بنیادی تنقید آپ پہ کی جا رہی ہے. دیکھیں، اس پہ بہتر رائے تو ہمارے وفاقی وزیر قانون جو ہے باہمی مشورہ ہوگا، اس پہ پراپر ایک لائن لی جائے گی اگر اس پہ آگے جایا جائے گا. ابھی تو تھوڑا پری میچور بھی ہے اس پہ زیادہ کامنٹ کرنا، لیکن یہ میں دوبارہ اصولی طور پہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ کیسز جو ہے میاں صاحب پہ، شہباز صاحب پہ، ہمارے دور کے تو تھے ہی نہیں، پرانے کیسز تھے. اگر کوئی ایسی اس میں ان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر ان کو کوئی ایشو نہیں ہے تو اس سے تو ان کو تو کم از کم اپریہنسو یا بیک فٹ پہ تو جانا ہی نہیں چاہیے. ہماری جماعت کا، جناب عمران خان صاحب کا 22-23 سال جو جدوجہد کی ہماری حکومت جب بنی، ہمیں سب سے بڑا جو مینڈیٹ عوام نے دیا وہ اس لیے دیا کہ عوام تنگ تھے ماضی کے کرپشن کی داستانوں سے، ملک کے لوٹ کسوٹ سے جس طرح سے ملک کے ساتھ ہوا ہے. تو یہ تو ایک مینڈیٹ ہے جو عوام کا ایک دیا ہوا مینڈیٹ ہے عمران خان صاحب. تو علی محمد خان صاحب یہ کیس دوبارہ کھل جائے گا اگر آپ عدالت میں گئے تو؟ دیکھیں، یہ تو اب عدالت میں دیکھا جائے گا، کیونکہ بہرحال کیس اگر کھلے گا تو عدالتی ایک سسٹم کے ذریعے ہوگا. ہمارے جو لا ڈویژن کے لوگ ہیں، جو پروسیکیوشن ہے، جو اٹارنی جنرل ہیں، جو لا منسٹر صاحب ہیں، وہ سارا اس کو دیکھیں گے. جو کچھ ہوگا قانون کے مطابق ہوگا. کسی کو وچ ہنٹ کرنا، کسی کے خلاف ذاتی طور پہ جانے کی نہ کوئی ہمارا کوئی ارادہ ہے. دیکھیں، کسی نے عمران خان صاحب کے، علی محمد کے یا فروغ نسیم یا فواد چودھری کے ذاتی گھر سے چوری نہیں کی. اگر کوئی کرپشن ہوئی ہے تو ہر پاکستانی، جس میں میں اور آپ بھی آتے ہیں، 22 کروڑ عوام کے گھر سے چوری ہوئی ہے. اب اصولی موقف یہ ہے کہ جس طریقے ہے اس کے پیچھے ریاست کو جانا چاہیے. اب اس میں اگر میاں صاحب ہیں، آپ ہیں، میں ہوں، کوئی بھی ہے، جس کا بھی نام آتا ہے، ہی شوڈ نو، خود آفر کرنا چاہیے، اپنے کیسوں کو میرٹ پہ ڈیسائیڈ ہونے دینا چاہیے. ہاں، بعض اوقات ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ بھی بات کی جاتی ہے، لیکن الٹیمیٹلی اگر ایک کوئی بہت بڑا لیڈر ہے. دیکھیں، وزیر اعظم، صرف مجھے 1 منٹ پلیز دے دیجیے گا. وزیر اعظم عمران خان صاحب سب کو پتہ ہے آنےسٹ آدمی ہے. سیاست سے آپ ان کی ایگری نہ کریں، لیکن اس بات پہ تو دو رائے نہیں ہے کہ آنےسٹ آدمی ہے. اچھا، انہوں نے اس پیسے کا بھی جواب دیا جب عمران خان صاحب کپتان تھے پاکستان ٹیم کے، باہر کھیلا کرتے تھے. میں ان کو فالو کرتا ہوں بچپن سے، ہمارے ہیرو رہے ہیں. وہ وہاں یو کے میں کھیلتے تھے کاؤنٹی کرکٹ، آسٹریلیا میں بھی شیفیلڈ شیلڈ میں کھیلا کرتے تھے. باہر جو پیسے کمائے، باہر جو کچھ کمایا، پاکستان لایا، اس کا منی ٹریل دیا. یہاں لوگ پاکستان سے باہر جو پیسہ گیا ہے اس کا منی ٹریل نہیں دیتے. انہوں نے باہر کا دیا، اور کہاں دیا؟ کسی لوور کورٹ میں نہیں،
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 6-7 महीने तक दिया और आखिर अली मोहम्मद खान साहब, बज़ाहिर जो ये लग रहा है कि हुकूमत की जानिब से अब दोबारा से ट्रायल कोर्ट में इस फैसले का जो है वो इस केस को दोबारा से लेकर जाया जाएगा और ये केस दोबारा चलेगा। तो जिस तरह से पहले हुकूमत में आने से पहले पैनामा केस, पैनामा स्कैंडल, उस पर सारी पेशरफ सामने, तो अब क्या आखिरी 2 साल कौम के सामने हुदैबिया पेपर्स मिल का केस चलाया जाएगा और ये बयानिया अवाम के सामने चलाया जाएगा? नहीं, रियासत का बड़ी जिम्मेदारी होती है, हुकूमत का उसके बहुत सारे आर्म्स होते हैं। आप एग्रीकल्चर में भी काम कर रहे होते हैं, फॉरेन अफेयर्स में भी कर रहे होते हैं, कम्युनिकेशन लॉ डिवीजन अपना काम कर रही होती है, आपकी इंटीरियर मिनिस्ट्री अपना काम कर रही होती है। अगर इस तरह का कोई केस है उसको तो लॉ डिवीजन देखेगी और उसको तो अटॉर्नी जनरल साहब देखेंगे और क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन ब्रांच देखेगी। बाकी जो आपके इश्यूज हैं, असल में तो फोकस डिलीवरी पे है। इमरान खान साहब ने बार बार कहा है कि वो चाहते हैं कि अवाम की डिलीवरी पे, महंगाई को कम करने पे, पाकिस्तान में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लाने पे और दराजाती रिफॉर्म की तरफ, जिसमें डिपार्टमेंटल रिफॉर्म भी है और इंस्टीट्यूशनल। अच्छा, अली मोहम्मद खान साहब, इससे पहले कि मलिक अहमद खान साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे सवाल मैं करूंगा, लेकिन आपने भी चूंकि महंगाई और गवर्नेंस की बात की है तो इस पर आपसे एक सवाल ये करना चाहूंगा कि खान साहब ने ये कहा था कि रमज़ान में वो खुद महंगाई को मॉनिटर करेंगे, लेकिन अभी जो हालिया इदारे शुमारियात की रिपोर्ट आई है उसमें फिर महंगाई में इजाफे के आदाद शुमार हमने देखे हैं। चिकन की कीमतें भी बढ़ी हैं, मटन की कीमतें भी बढ़ी हैं, अशिया ज़रूरिया की कीमतें भी बढ़ी हैं। तो जो महंगाई में कमी का दावा किया गया था खासतौर पर रमज़ान में, वो तो नज़र नहीं आया हमें। महंगाई में इजाफा हुआ है माजी में, लेकिन एक बात जो बहुत से लोग जो इस पे नज़र रखते हैं वो इससे एग्री करेंगे कि अमूमी तौर पे पता नहीं कितने ज़माने से ये एक रुझान है जो कि अच्छा नहीं है कि हम मुसलमान जो हैं हम रमज़ान में चीज़ें हम बढ़ा देते हैं। अब ये कोई इमरान खान साहब की हुकूमत में नहीं है कि रमज़ान में कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन इसमें एक दिलचस्प अमर यह है कि इन्फ्लेशन में जो महंगाई में जो बढ़ोतरी हुई है इस दफ़ा रमज़ान में उस तनासब में महंगाई रमज़ान में नहीं हुई। स्पेसिफिकली जो रमज़ान में प्राइस जंप आता था वो उतना नहीं हुआ, लेकिन चूंकि पीछे से महंगाई चल रही है इसलिए इसका इफेक्ट लोगों को महसूस हो रहा है। लेकिन इंशाल्लाह नए वजीर खजाना साहब के आने से जो ग्रोथ की बात कर रहे हैं, जो डेवलपमेंट साइड पे इकॉनमी को लेके जाने की बात कर रहे हैं, आई एम होपफुल इंशाल्लाह आहिस्तगी से ठीक है। इस पर क्या पेशरफ सामने आती है और अपोजिशन के इस पे स्टांस के, ये भी हम बात करेंगे। मलिक अहमद खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मलिक साहब, अदालती अहकामात आ चुके थे लेकिन इसके बावजूद शहबाज शरीफ साहब को नहीं लंदन जाने दिया गया, क्या वजह आप समझते हैं? जी बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, ये तो बुनियादी एक अदालती हुक्म को इन्होंने उसको मानने से इनकार नहीं किया हुकूमत ने। ये तो गालिबन 3 ऑर्डर्स बन जाएंगे। एक लाहौर हाई कोर्ट का डीबी का ऑर्डर है जिसमें उनका नाम ECL से स्ट्राइक डाउन करने के लिए गवर्नमेंट को हुक्मनामा जारी हुआ था। दूसरा, जो नैब अथॉरिटीज ने एक अपील फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर भी एज पार्टी कोर्ट के अंदर मौजूद थी, जिसमें इन्होंने उनका नाम दोबारा ECL में डालने के लिए दरख्वास्त की थी उस अपील के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें बड़ा वाज़ेह और बड़ा क्लियर कट ऑर्डर पास किया कि उनका नाम ECL पे नहीं डाला जा सकता। ना सिर्फ कि ये कहा गया कि ECL पे नहीं डाला जा सकता, तो उसमें साथ उन्होंने ये भी लिखा कि अगर उनकी कोई जुडिशल कस्टडी नहीं है तो उनकी मूवमेंट के ऊपर कोई कदगन नहीं लगाई जा सकती। और तीसरा ऑर्डर अब ये जो सिंगल बेंच का लाहौर हाई कोर्ट का है, तो ये इसके इन तमाम ऑर्डर्स की मौजूदगी में इनका नाम किसी भी ऐसी लिस्ट में जो उनकी मूवमेंट को रोकती हो रखना वैसे ही गैर कानूनी है। अच्छा मलिक अहमद खान साहब, जो कानूनी मामलात तो ठीक है आप उन पर जिक्र कर रहे हैं, इखलाकी तौर पर ये बताइएगा कि एक शख्स जो जामिन हो, जिसने किसी दूसरे शख्स की जमानत दी हो कि वो बाहर जाएंगे लेकिन वो वापस आ जाएंगे, लेकिन वो दूसरा शख्स वापस नहीं आया, तो क्या इखलाकी तौर पर जामिन को खुद भी बाहर चले जाना चाहिए? जी देखिए, ये तो बड़ी बेसिक कॉमन सेंस है कि जब आप किसी कोर्ट में कोई एज अ श्योरिटी स्टैंड करते हैं तो वो उसकी बाइंडिंग होती है आपके ऊपर। अब जो श्योरिटी के तौर पे शहबाज साहब मियां नवाज शरीफ साहब के लिए उनका बॉन्ड साइंड है, उसमें बड़ा वाज़ेह और 2 टोक उस बॉन्ड के अंदर लिखा हुआ है कि डॉक्टर्स की एडवाइस के मुताबिक उनकी वापसी होगी, और अगर वो इस महीने से आगे जाएगी या फॉर एनी टाइम जिस पर डॉक्टर्स डिसाइड करेंगे कि वो उनकी ट्रीटमेंट मुकम्मल हो गई है, और उसकी रिपोर्ट हम गवर्नमेंट को देते रहेंगे। तो बेसिकली ये श्योरिटी उस सेंस में जैसे हमारे कुछ जोमा के बात करते हैं, वो
बिल्कुल उसको मिस इंटरप्रेट करते हैं और अपनी मर्जी की उसकी तशरीह करने की कोशिश करते हैं, जो कि उसमें लिखा भी नहीं है। तो बेसिकली शहबाज साहब की जो श्योरिटी थी वो ये थी कि वो उनकी पीरियोडिक रिपोर्ट्स जमा करवाएंगे और जब डॉक्टर्स परमिट करेंगे तो वो वापस आएंगे। तो ठीक है अली मोहम्मद खान साहब, मलिक साहब ने भी वो जिक्र किया है और श्योरिटी बॉन्ड में तो वाज़े तौर पर शहबाज शरीफ साहब ने भी और अदालती हुक्म में भी यही था कि जब तक इलाज मुकम्मल नहीं होगा और डॉक्टर्स नहीं कहेंगे तब तक नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आ सकते, या उनकी एडवाइस पर ही डॉक्टर्स के वापस आएंगे। तो फिर ये हुकूमत की जानिब से क्यों कहा जा रहा है कि इन्होंने जमानत दी थी और जब तक वो नहीं आते तो उनकी वापसी का पहले सवाल इनसे करना चाहिए? जिस श्योरिटी बॉन्ड की बात मलिक अहमद खान साहब ने की है, उस श्योरिटी बॉन्ड में बिल्कुल मैं इनकी इस बात से एग्री करता हूं कि उसमें डॉक्टर्स की भी बात हुई थी, लेकिन इनसे एक सवाल ये है कि जो कोई श्योरिटी किसी की देता है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वो उस श्योरिटी को विद क्लीन हैंड्स अदालत में डिस्चार्ज करे। तो क्या ये दिल पे हाथ रख के बताएं मलिक साहब कि क्या उन्होंने वो किया? मैं इस बात से एग्री करता हूं कि उस श्योरिटी बॉन्ड में ये है कि एक तो ये नुक्ता है कि 40 दिन में मेरे ख्याल में उसमें बताया गया था कि वो वापस आ जाएंगे प्लस डॉक्टर्स की। लेकिन ये मुझे बताएं कि जो वहाँ उन्होंने इलाज किया है, क्या उन्होंने इलाज किया है? क्या उसकी ऑथेंटिक रिपोर्ट्स रेगुलरली भेजते रहे हैं? आखिरी बार रिपोर्ट उन्होंने कब भेजी? और क्या वो डॉक्टर्स की हिदायत इस बारे में क्लियर है कि उनकी कोई ऐसी ट्रीटमेंट चल रही है जिसके लिए वो बिल्कुल ही पाकिस्तान नहीं आ सकते? क्या पाकिस्तान में करोड़ों लोगों का इलाज नहीं हो रहा, या ये एक तरीका है अदालत से बाहर रहने का, पाकिस्तान वापस ना आने का? क्या ये बहाना तो नहीं? इसलिए तो मैंने एक बात भी की थी ऑन द लाइटर नोट मियां साहब शहबाज साहब के बारे में कि शहबाज साहब सरी तो कर लेते, इतनी जल्दी क्या थी बाहर जाने की? यानी कि एक तरफ आपने श्योरिटी दी है बड़े मियां साहब के वापस आने की, वो तो आए नहीं, अब आप खुद भी बाहर जा रहे हैं। अगर आप कहते हैं कि नहीं डॉक्टर्स की हिदायत, तो किधर है वो डॉक्टर्स की हिदायत? एक साल से कितनी रिपोर्टें आई हैं, उस अदालत में कितनी पेश हुई हैं और मीडिया के सामने कितनी प्रेजेंट हुई हैं? तो देखिए हम सब, आप भी बच्चे नहीं, हम भी बच्चे नहीं हैं, तो थोड़ा बहुत मामलात को आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। बेसिकली चक्कर यही चल रहा है कि किसी तरीके से अदालत की पहुंच में अभी ना आया जाए एक ऐसे शख्स की जानिब से जो बसद एहतराम कि वो साबिक वजीर आजम है, लेकिन अपने मुल्क के इदारों खासकर आला अदलिया पे एतमाद कोई नहीं है, इसलिए वापस नहीं आना चाहते। तो मलिक साहब, अली मोहम्मद खान साहब का यही सवाल आपके सामने रख के आपका मौक़िफ़ जानना चाहेंगे कि अगर ठीक है मेडिकल कंडीशन से मशरूत थी नवाज शरीफ साहब की वापसी, लेकिन उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स रेगुलरली जमा नहीं कराई गई और कोई स्टेटस भी नहीं बताया गया कि उनका इलाज क्या वहाँ पर रेगुलरली चल रहा था या नहीं चल रहा था, तो इससे तासुर यही जाता है कि इलाज का तो सिर्फ एक कवर अप था, असल में तो वो बाहर जाना चाहते थे। अच्छा देखिए, बड़ा ही अच्छा हुआ कि अली साहब ने ये तीनों बातें इतने अच्छे पैराए में कह दी कि बिना आसान हो गया। देखिए, एक तो पहला सवाल जो कि उनकी रिपोर्ट्स जो हैं, हमने एज इंस्ट्रक्टेड बाय द कोर्ट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को हर महीने के बाद उनकी रिपोर्ट हमने उनको सबमिट करनी थी बजरिया हुकूमत। वो रिपोर्ट्स जब हमने दी, 2 कंसेक्यूटिव रिपोर्ट्स दी, जो भी डॉक्टर्स की वहाँ से हमारे पास ओपिनियन आई, हम लेकर होम ऑफिस गए और वो रिपोर्ट्स हमने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को दी। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का मौक़िफ़ ये था कि नहीं, ये रिपोर्ट्स तो अपनी जगह पर हैं, लेकिन हमें इनकी ये रिपोर्ट्स दें जो उन्होंने 3 डिफरेंट रिपोर्ट्स उन्होंने डिमांड की। उनमें एक रिपोर्ट उनकी ऐसी भी थी जो उनकी जो रेडिएशन की स्कैनिंग के मुतल्लिका थी। उस पर हमने उनसे जवाब दिया कि डॉक्टर्स का ये ख्याल है और उनकी ये क्लिनिकल असेसमेंट है और वो ये कह रहे हैं कि जब तक हम इनको स्टेबल ना कर लें विद जो उनकी हार्ट की कंडीशन है, उस वक्त तक फर्दर इन्वेस्टिगेशंस एडवाइजेबल नहीं। तो यहाँ पर आके मामला रुक गया और साथ में उन डॉक्टर का ये लेटर भी हमने इनको दिया जो उनके मॉलेज थे, जिसमें उन्होंने ये कहा क्योंकि इनकी ऑलरेडी स्टंटिंग हो चुकी है, एक नहीं डिफरेंट प्रोसीजर्स हो चुके हैं, तो इनको इस वक्त किसी रेडिएटिव स्कैनिंग से गुजारना, उनकी इस टेस्ट की रिक्वायरमेंट जब तक हम फर्दर इनकी हार्ट की कंडीशंस को एग्जामिन ना कर लें, अंडर मॉनिटरिंग ना रख लें और उनको स्टेबल ना कर लें, तो यहाँ पर गवर्नमेंट का और हमारा एक डिसएग्रीमेंट शुरू हो गया। उस डिसएग्रीमेंट पर गवर्नमेंट ने वो जो कंसेशन बेल की थी उसको विड्रॉ कर लिया। ये इख्तियार क्योंकि कोर्ट ने हुकूमत को दिया और वो विदाउट असाइनिंग एनी रीजन और उस रिपोर्ट की वैलिडिटी को एग्जामिन किए बगैर, उसको प्रूव किए बगैर उन्होंने बेल ऑर्डर विड्रॉ कर लिया। हम उस हुक्म के खिलाफ एक डिफरेंट प्रोसीडिंग्स में सुप्रीम में
क्योंकि एक मुकदमा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, एक मुकदमा था। देखिए ना, गुजारिश ये है कि ये एक गवर्नमेंट ने एक नैरेटिव अडॉप्ट किया कि ये क्योंकि बीमारी की बुनियाद बनाकर बाहर चले गए। मलिक अहमद खान साहब, बीमारी की ये वाला मामला तो आपने तफसीलन बताया है। जो दूसरा मामला एक सामने आ जाया है हुदैबिया पेपर्स मिल वाला, अब जबकि पहले इस मामले को, इस केस को टेक्निकल ग्राउंड्स पे बंद किया गया और फिर ये भी कानूनी मामला है कि जब नए गवाह सामने आ जाएं तो फिर केस दोबारा खुल भी सकता है। तो अगर ये कानूनी लवाजमात पूरे हों और हुकूमत दोबारा ये केस खोलती है तो फिर मुस्लिम लीग नून को सामना करना चाहिए इस केस का, अपोजिशन तो नहीं होनी चाहिए केस पे? बुनियादी बात केस के मुतल्लिका तो अभी तफसील से हम बात करते हैं, लेकिन जो हुकूमत सजेस्ट कर रही है, हुकूमत ये सजेस्ट कर रही है कि एक हाई कोर्ट लाहौर का हुक्म है, उसकी भी परवाह ना करें, एक सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का हुक्म है, उसकी भी परवाह ना करें, और उन दोनों अहकामात में जिसमें इस मुकदमे को उन्होंने बिल्कुल कर दिया है, कोर्ट का ऑर्डर है कि ये मुकदमा खत्म है। ठीक है, एक नई खान साहब, मलिक साहब की जानिब से तो और ये ऑपोजिशन नून लीग की जानिब से इल्जाम लगाया जा रहा है हुकूमत पर कि हुकूमत अदालती अहकामात का एहतराम नहीं कर रही और ना हाई कोर्ट के और ना ही सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो कर रही है। उसका एब्सोल्यूट क्लोजर हो चुका है, ये खोलना चाह रहे हैं। अच्छा, अली मोहम्मद खान साहब, दो बातें मैं कह देता हूँ। पहली बात तो मियाँ नवाज शरीफ साहब के वापस आने के मुतालिक देखें, हुकूमती मौक़िफ़ आपके सामने आ चुका, इनका भी मौक़िफ़ आप सामने मुल्ज़िम का भी आ चुका। अब इसमें अहम बात ये नहीं है कि हुकूमत क्या कहती है या मियाँ नवाज शरीफ साहब या उनकी लीगल टीम वो क्या कहती है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अदालत क्या कहती है। अदालत जो है वो पर्सन स्पेसिफिक लॉज नहीं बनाती, ना पर्सन स्पेसिफिक लॉज पे इंटरप्रिटेशन देती है। मैं जजमेंट लॉ की बात कर रहा हूँ, ना वो लोगों को देख के फैसले करती है, वो आइन को देख के फैसले करती है। अगर तो वो अदालत जिसमें बड़े मियाँ साहब का केस चल रहा है, बसद एहतराम साबिक वजीर आजम रहे हैं, उनको मेरे से और आपसे और मलिक साहब से ज्यादा मुल्क से प्यार होगा, और वो चूंकि वो इस मुल्क के सबसे बड़े ओहदे पे 3 बार रहे हैं, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, तो उनको सबसे ज्यादा एहसास होना चाहिए कि अदालत का एहतराम क्या होता है। अगर तो वो अदालत जहां उनका केस चल रहा है, उस अदालत में वो मफरूर हैं और अदालत ने उनको ऑर्डर्स किए हैं कि आप वापस आ जाएं, तो आप वापस आ जाएं। आप अपनी अदालत पे एतमाद रखें और वही रिपोर्टें आप वहां पे पेश कर दें। जिस तरह आप यूके में ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, आप आ जाएं, 5-6-7 घंटे की फ्लाइट है, अदालत फैसला कर देगी कि क्या। ठीक है, अगर नवाज शरीफ साहब को अदालतों पर एतमाद है आपके मुताबिक तो वो आए और केसेस का सामना करें। बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब, मलिक अहमद खान साहब हमारे साथ आप मौजूद थे।